Good evening. Oh, let's try that one more time. Good evening. That's better. All right. Open your Bibles to 2 Timothy chapter 3. आप इस समय अपने बाइबल को खोलें दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 में। 2 Timothy chapter number 3. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3। We're going to start in verse number 14. और हम वचन 14 से हम देखेंगे। But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है और ये जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. और बचपन से विश्वास शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Heavenly Father, as we enter into this sermon, स्वर्गीय पिता जैसे हम इस संदेश में हम प्रवेश करेंगे, I ask that you would give us wisdom. मैं दुआ करता हूँ कि आप हमें बुद्धि को दें। Father, I pray that you would give me only the words you would have me to speak. और जो आपने शब्दों को मेरे लिए रखा था कि मैं वही बातों को बोल सकूं। Holy Spirit, I ask that you would move me out of the way and speak to your people. पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई करता कि मैं आपके लोगों से बात कर सकूं। Father, use your word to glorify your name. प्रभु आपकी वचन को इस्तेमाल कर आपके नाम की महिमा करने के लिए। All these things we ask in Jesus' name. और हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। All right. In 2 Timothy chapter 3, we encounter Paul giving instructions to Timothy. और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस में कि पौलुस तीमुथियो को कैसा शिक्षा को देता है। In this chapter, Paul has described what is coming in the last days. और पौलुस यहाँ पर वर्णन करता कि अंतिम दिन में क्या क्या होने वाला है। He talks about perilous times where men shall be lovers of themselves rather than lovers of God. और यहाँ पर हम देखते हैं अंत दिन में लोग क्या होंगे, खुद के ऊपर उन लोग अपने प्यार को बनाए रखेंगे, वचन के ऊपर नहीं। And if any of us are being honest, we can honestly say we are living in those days today. और हम ये वाकई में कह सकते हैं कि हम वो अंत दिन में हम जी रहे हैं। Men and women would much rather focus on themselves rather than surrender to the call of Christ. और हमें क्या करना चाहिए, खुद के ऊपर देखने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए हमें समर्पित करना चाहिए। As a believer, many times this reality is very discouraging. और ये एक विश्वास से होने के नाते सच्चाई जो है बहुत निराशपन है हमारे जीवन में। We know the truth. और हम सच्चाई को जानते हैं। We know who the King of Peace is. और हम जानते हैं कि शांति का राजा कौन है। We understand who Christ is. और हम ये भी समझते हैं कि मसीह कौन है। And the salvation that he offers freely to all men. और पूरे मुफ्त से जो उद्धार को हमें वो हमारे जीवन में देता है। So when people around us knowingly reject the gospel, जो हमारे चारों ओर के लोग जो जानते हुए भी सुसमाचार को जब इनकारते हैं, it is not only heartbreaking, और ये केवल दिल टूटने वाली बात नहीं, but it is incredibly frustrating. लेकिन अविश्वासी जनक से ये जो है बहुत परेशान जनक है। Verse number 5 is a verse that sums up the first part of chapter 3. और ये वचन जो 5 है, पहला जो वचन 3 है उससे मेल खाती है। Having a form of godliness but denying the power thereof. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। The very last part of that verse is the key to understanding why this passage is so important.
और ये इस वचन के जो आखिरी शब्द हैं उसको हम ये मूल और चाबी है जो हम इस अध्याय के ऊपर हम समझ पाते हैं कि ये मूल विषय क्या है From such, turn away. कि वहां से तुम मुंह फिर जाओ। It is easy to hear false doctrine taught. You can hear it anywhere. Open Facebook and you'll hear it. और आप आज बहुत सारे सोशल मीडिया को खोल सकते हैं, आप बहुत से गलत शिक्षाओं को आप सुन सकते हैं। Turn on YouTube or the television and you can hear any kind of doctrine that you would like to hear. और आज आप टेलीविजन देख सकते हैं, यूट्यूब में खोलकर देख सकते हैं, हर प्रकार के शिक्षाओं को आपको सुनने में मिलेंगे, But very little Bible preaching. लेकिन बहुत ही कम बाइबल का प्रचार। That is why Paul challenges Timothy at the end of this chapter. और इसीलिए पौलुस जो है तिमोथियुस को इस वचन के आखिरी में बताते हैं, Verse 14. वचन 14 में, But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा है। When I want to learn about science, I go to a scientist. जब मैं साइंस के बारे में सीखूंगा तो मैं विज्ञान के पास जाऊंगा। When I want to learn how to speak another language, I go to a person that speaks that language. और मैं जब अन्य भाषाओं को बोलने के लिए मुझे सीख चाहिए तो मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है। As the world is searching for peace, और जैसे संसार आज शांति के लिए ढूंढता है, they need to encounter us Christians who know the Prince of Peace. और जो शांति की राजा को जानता है वो उन लोगों को हमसे मिलना चाहिए। That peace that passes all understanding और ये जो पैसेज है यहाँ पर सब समझ के बाद है, is found in the Word of God. और वो हम बाइबल में पाते हैं। I cannot explain everything in this book, और इस किताब में मैं सब कुछ आपको विश्लेषण या फिर समझा नहीं सकता, but I can introduce you to the one that can. लेकिन जो कर सकता है उससे मैं आपको मिला सकता हूँ। Verse 15. वचन 15 में, And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। A little bit about Timothy. तिमोथियुस के बारे में थोड़ा सा विषय। Timothy's mother was Jewish. और तिमोथी का जो माँ है वो यहूदी थी His father was a Greek. और उनका पिता ग्रीक था। He had access to learning provided by the Greeks. और उनको जो सीख मिली है वो ग्रीक लोगों की ओर से मिली है। But part of the problem with the Greeks was that they didn't believe that Jesus was God. लेकिन ग्रीक के लोगों ने ये विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। They had hundreds of gods that they worshipped. और जो उन लोग आराधना करते थे उन लोगों के पास सैकड़ों ऐसे भगवाने थे। You could worship a different one every day for the rest of your life. और आपके जीवन के अंत तक आप अलग-अलग भगवान की आराधना कर सकते हैं। If one made you angry, you could pick another one. अगर आपको एक पसंद आया तो आप एक उठा सकते हैं। If one wanted you to give too much, you could find one that asked you to give less. अगर आपके पास कोई ज्यादा देते हैं तो आप उनके पास जाते थे, तो कम उनके पास आप जा सकते हैं वैसा। His mother, on the other hand, was Jewish. लेकिन उनकी जो माँ थी वो यहूदी थी। She had access to the scriptures which gave him knowledge beyond what the Greeks could give. लेकिन जो उन्हें सीख मिली है जो ग्रीक लोगों ने नहीं दे पाया उन्हें यहूदी लोगों से मिली है। The scriptures that she gave him an anchor to the truth. और जो वचन उन्हें दी है वो सच्चाई को दी है। That no matter what his feelings were day to day, चाहे उनके अनुभव चाहे जो कुछ भी हो हर दिन प्रतिदिन में, no matter how his opinions changed चाहे throughout his life, उनका जो ओपिनियन वगैरह जैसे भी चाहे बदले, he could find that anchor in scripture. और वो उस चीज को वो वचन में पा सकता था। Which is why he made it very clear from a child, इसलिए वो स्पष्ट तरीके से बताता है वो बचपन से ही thou hast known the holy scriptures. कि पवित्र शास्त्रों को तेरा जाना हुआ है। Remember from last night, आप कल पिछले रात से आप याद करें, the one statement that is used to completely describe God is the word holy. और वो जो परमेश्वर को वर्णन करता है वो शब्द क्या है, वो पवित्र है। In that simple passage, और इतना ही स्पष्ट ये वचन है। God takes claim of his own word. और परमेश्वर अपने वचन को स्पष्ट तरीके से हमें बताते हैं। And Paul reminds Timothy that this book is not his to question.
और पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि ये किताब ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम प्रश्न को करें, It is his to only obey. लेकिन ये केवल पालन करने का किताब है। Let's keep reading. आइए हम लगातार पढ़ते हैं इसको। Verse 16. वचन 16 में, All scripture. संपूर्ण पवित्र शास्त्र। It is vitally important that we understand those words. और ये हमें बहुत ही समझने की आवश्यकता है जो वचनें हैं यहाँ पर लिखी गई है। It does not say some scripture. और ये नहीं कह रहे कि कुछ वचनें, It does not say the scripture I happen to agree with. ऐसा नहीं कि कुछ वचन को जो मैं जिससे मैं राजी होता हूँ, All scripture. लेकिन लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, No exceptions. कोई अलग नहीं, No strings attached. ऐसा नहीं कि किसी से जुड़ा हुआ है, Every word of God is pure. लेकिन परमेश्वर के हर वचन शुद्ध है। All scripture is given by inspiration of God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। The word inspiration means the spirit within, प्रेरणा यानी कि पवित्र जो आत्मा अंदर होना, the spirit moving. यानी कि पवित्र आत्मा कार्य करना। God directly involved himself in the giving of his word. उनकी वचन को देने में परमेश्वर उस कार्य में जुड़ा हुआ है। This Bible is not the opinion of translators. और ये ट्रांसलेटर का जो ओपिनियन है, ऐसा किताब नहीं है ये, It is not the opinion of men and their personal doctrine. या फिर जो अपना खुद का ही शिक्षा को बनाता है उन लोग का ओपिनियन नहीं है। It is God himself directly translating and giving us his perfect word. लेकिन परमेश्वर खुद ही क्या किए हैं, इसको अनुवाद कर कर हमें दिए हैं। I cannot tell you how many debates and conferences I have been in on the Bible. मैं आपको बता भी नहीं सकता कि बाइबल के ऊपर मैं कितने सारा विवाद को किया है लोगों से। Specifically in debates, my opponent will say there are errors in the Bible. और मेरे जो विरोधी लोग होंगे उन लोग हमेशा कहते हैं कि बाइबल में बहुत सारी गलतियां हैं। He is, the last debate I was in, he was more than happy to give me a list of 10 that he believed were errors. और पिछले जो डिबेट में उन्होंने मुझे 10 ऐसे बातों को बताई जहां पर उन लोगों को कहने लगे कि बाइबल में 10 ऐसे गलतियां हैं। I pointed this verse out and लेकिन- asked him to explain it to me. लेकिन मैंने इस वचन को उन्हें दिखाकर कहा कि तुम इसको मुझे बताओ। If God says all, please tell me where he missed that word. अगर प्रभु ने कहा कि संपूर्ण वचन, तो परमेश्वर ने कहां पर ऐसा छूट हो गया कि जहां पर गलतियां हो। I'm not very smart, मैं इतना भी समझदार नहीं, but I think I know what the word all means. लेकिन मुझे मालूम है कि संपूर्ण यानी कि उसका मतलब क्या है। All means all, and that is all that all means. संपूर्ण यानी कि संपूर्ण, जो यहाँ पर लिखा गया संपूर्ण सब कुछ यानी कि संपूर्ण है। I just wanted to hear you say that. Sorry. When God says all of Scripture is mine to give, जब प्रभु ने कहा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र मुझे दी गई है, I have no right to tell God he was wrong. मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि बोलने के लिए कि हाँ ये गलत है। I turned and asked my opponent if there are errors in the Bible. मैंने अपने विरोधी व्यक्ति को पूछा कि ऐसा क्या गलती है बाइबल में। Would you please explain to me how, as a pastor, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि जैसे पास्टर होने के नाते God got all of those things wrong, परमेश्वर ने जो कुछ भी गलती को किए हैं यहाँ पर, but mysteriously, लेकिन एक रहस्यमय से, he got tithing right every time? लेकिन वो हर समय जो है सही को किए हैं। That was the response. Silence. और वही उनका जवाब था और वहां पर चुपचाप सब हो गए। Because in his viewpoint, it was not about the truth. उनकी नजरों में वो सच्चाई को लेकर नहीं था, It was about where his authority was. लेकिन उसका अधिकार कहां पर है उसको लेकर। Because if I tell you that the book you have in your lap right now is not perfect, अगर मैं कहूँ कि आपके हाथ में जो भी बाइबल आपने धरा है अगर वो सही नहीं है, your authority has moved from the Bible to me. तो आपका अधिकार जो है वहां से हटकर, बाइबल से हटकर मेरे ऊपर आ गया। Paul reminds Timothy that authority over Scripture does not belong to you. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर तिमुथी से कहता है वो अधिकार जो है तुम्हारे को नहीं दिया गया है बाइबल के ऊपर। All Scripture is given by inspiration of God संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है and is profitable और यह हमारे लिए लाभदायक है for doctrine. उपदेश के लिए, This is incredibly important for the Christian. और यह मसीहों के लिए बहुत ही जरूरी है। Doctrine is our boundary line. शिक्षा जो है हमारा एक रेखा है।
It tells me how I am to live. और ये हमें बताते कि हमें कैसा जीना It है, tells me what is acceptable to God. और ये बताता है कि कौन सा ग्रहण योग्य है प्रभु के And लिए, it tells me how I am to live out my faith. और मुझे ये बताते हैं कि मैं कैसे अपने विश्वास में जी सकूं। It is also profitable for reproof. और ये समझाने के लिए, सुधारने के लिए। Reproof is when I am wrong. इसका मतलब ये कि जब मैं गलत हूं I need to fix what's wrong. और जो मुझ में गलतियां हैं उसको मुझे सुधारने हैं, I cannot go to the opinions of men. और मैं मनुष्य की ओपिनियन में नहीं जा सकता, Because for every man, there is a different opinion. क्योंकि हर एक लोगों के लिए अलग अलग विचार होंगे। I could ask every one of you a specific opinion, and I would get as many answers as there are people in this room. और आपके समूह जाकर मैं बहुत से ऐसे विचारों को पूछ सकता हूं, लेकिन आपके हर एक जो विचार होंगे वो सब अलग अलग हो सकते हैं। God removed the confusion. लेकिन परमेश्वर ने वैसा ना समझ को सब हटा दिए हैं, Because God is not the author of confusion. क्योंकि परमेश्वर ना समझ वाले का ऑथर नहीं है, He gave us a solid foundation लेकिन परमेश्वर ने हमें इस बुनियाद को दिया है। and said, if you want to know how to fix your life, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन को आप कैसे सुधारने हैं, I will tell you how. और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। So reproof allows me to see doctrine and apply it to my life. सुधारना यानी कि मैं सच्चाई को देखकर अपने जीवन में उसका लागू कर सकूं, Making the changes in my life where necessary. मेरे जीवन में बदलावट जो है बहुत जरूरी है, For correction. और सुधारने के लिए। This is the very difficult part in Christianity. और ये मसीही जीवन में बहुत ही एक कठिनदायक एक चीज है, It's the one we enjoy doing the most, but it's the hardest one. और जो हमें करने के लिए बहुत पसंद है वही छोड़ने के लिए हमें बहुत कठिनदायक हो जाता है। Correction is where I open the Bible and fix you. सुधारने के समय जब हम बाइबल को खोलते हैं और मैं आपको सुधारता हूँ समय। As a preacher, that's kind of my job. और एक प्रचारक होने के नाते वो एक मेरा काम हो जाता है। But notice the direction that it flows. और जो दिशाओं की ओर वो चले जाते हैं। I have all scripture which gives me doctrine. और मेरे पास सारे वचन है जो मुझे शिक्षाओं को देता है। That tells me what to believe. और वो मुझे बताते कि मुझे क्या विश्वास करना है। But before I can get to correcting you, और आपको सुधारने से पहले I have to correct myself. मुझे खुद को सुधारना है। I have to apply scripture to my life. और मेरे जीवन में मुझे वचनों को जो है लागू करना है। Correction is for the other person to become closer to God. सुधारना यानी कि बाकी अन्य लोगों के लिए, ताकि उन लोग प्रभु से नजदीक आ सके। Because again, at the end of the day, Christianity is not about us. क्योंकि अंत दिन में अंत समय में जो है मसीहत जो है वो केवल अपने के लिए नहीं, It is about the glory, honor, and majesty of God. लेकिन ये प्रभु की आदर सम्मान के लिए है। Lastly, we see it is for instruction in righteousness. और हम अंत में देखते हैं और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। This is the greatest part of the call of Christ that we often miss. और ये प्रभु की बुलावा को जो हम हर समय अक्सर हम खो देते हैं। To instruct means to sit and open a book and teach. यानी कि हम बैठकर किताब को खोलकर सिखाने लायक हो। We have a word for that. It is called discipleship. उसको हम एक डिसाइपलशिप कहते हैं। This is where I open up the Word of God and teach you what it says. और वहां पर ही मैं अपनी बाइबल को खोलकर बताता हूं कि वो क्या हमें बताती है। And as a single part of the body, और बाइबल के एक अकेला हिस्सा होने के नाते we study the Bible to grow in Christ. और हम बाइबल का अध्ययन करते ताकि हम वचन में बढ़ सके, Working together to make corrections to each other ताकि हम एक साथ काम करके एक दूसरे का सुधार ताकि हम बन सके, and understanding who God is. और हम ये ताकि ये समझे कि परमेश्वर कौन है। Verse number 17. वचन 17 में, That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। I have heard many people say, well, this verse tells me that I don't need to read the Bible because I'm not a man of God. I'm not a preacher. बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ देखो, मुझे बाइबल की अध्ययन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन नहीं हूं, तो मुझे अध्ययन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। Are you a believer? क्या आप एक विश्वासी हैं? If you are, अगर आप हैं then this applies to you. तो ये आपके लिए लागू होता है। The man of God must be perfect. परमेश्वर का जन को सिद्ध होना है।
I have heard this interpreted as complete. और मैंने लोगों को ये सुना है इंटरप्रेट करते हुए कि पूरी तरीके से। If God had wanted to say that the man of God would be complete, that's what he would have said. और अगर परमेश्वर कहता कि हाँ पूरी तरीके से, तो मनुष्य वही करते फिर। Instead, he said that the man of God may be perfect. लेकिन उसके जगह में प्रभु ने कहा कि ताकि मनुष्य का जन सिद्ध बने। This is explained with the book of Job. और वो आयुब की किताब से हमें विश्लेषण मिलता When है। all of the things went wrong in Job's life, जब सब कुछ गलतियां आई उनके जीवन में, आयुब के जीवन में, Job did not sin nor charge God foolishly. और आयुब ने कुछ पाप भी नहीं किया उस समय। He was a man who was perfect in his days. और ऐसा मनुष्य था उनके दिनों में जो वो सिद्ध व्यक्ति था। Did not mean that he didn't fall. इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप में नहीं गिरा। It did not mean that he did not make mistakes. इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ गलतियां नहीं किए। What it means is that he found his worth in his Savior. इसका मतलब उसने अपने कार्य को जो है अपने उद्धारकर्ता में पाया है। Be ye holy as your Father which is in heaven is holy. जो स्वर्गीय पिता जैसा पवित्र है, तुम्हें वैसा पवित्र बनना है। The man of God is to be perfect. मनुष्य का, परमेश्वर का जन को सिद्ध होना है। How do we learn how to be perfect? कैसे हम सीखेंगे, कैसे हम सिद्ध को बने? Through the Word of God. प्रभु के वचन के द्वारा। Let me remind you of one small thing. एक छोटी सी चीज के ऊपर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। If you know anything about the life of Timothy, अगर आप तिमोथियुस के जीवन के बारे में कुछ जानते रहेंगे, his mother and grandmother taught him the scriptures. उनका माँ और दादी माँ ने उनको वचन को सिखाए हैं। Ladies, let me talk to you for just a moment. सारे स्त्रियां, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा इस समय। You have the greatest influence on your family than anyone in your family. आपके परिवार में आपसे ज्यादा कोई भी प्रभावित व्यक्ति नहीं है आपके परिवार में। Far too often we surrender our responsibilities as parents and as family members to someone else. बहुत से समय हम हमारे कर्तव्यों को एक पेरेंट्स होने के नाते हम किसी और को हम सौंप देते हैं। I don't have any children. मेरे पास कोई बच्चे नहीं हैं। I have nieces and nephews, मेरे पास नीसेस से नेफ्यूज वगैरह हैं। but the truth still applies. लेकिन सच्चाई ये है कि फिर भी लागू होता है। I have watched my family, the females in my family. मैंने अपने परिवार में जो लड़कियां हैं उनको देखे हैं, औरतों को देखे हैं। They have a stronger walk with God than most of the men do. और बहुत से जो पुरुष लोग हैं उन लोग से भी उन लोग प्रभु में उन लोग ज्यादा मजबूत हैं, बहुत से औरतें। Ladies, it falls to you to train your children to walk with God. सारे स्त्रियां जो है आपको जो है कर्तव्य को लेने ताकि आप अपने बच्चों को सिखाए प्रभु के साथ चलने के लिए। Whenever there's anything wrong and someone gets sick, who's the first person they call for? जब कई बार कोई बीमार हो जाते हैं, सबसे ज्यादा किसको पहले बुला जाता है? They call for their mama. उन लोग अपने माँ को पुकारते हैं। Why is that, do you think? ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? She's the first person that showed him love. और वही जो है पहली व्यक्ति हो जाती है जहां पर वो आकर दिखती है। As Christian ladies, जैसे एक मसीही स्त्री होने के नाते you show your children the love of Christ and your love for them. और आप उन लोग अपने प्यार को दिखाते हुए आप प्रभु के प्यार को उन लोगों को दर्शा सकते हैं। Men, let me speak to you for just a moment. अभी सारे जो पुरुष हैं मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा। While you may not have as direct a home influence on your children, शायद आपके परिवार में, आपके घरों में अपने बच्चों के ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता शायद से। your wife or your mother or whatever, she is there to give them that foundation. लेकिन शायद जो माँ है या फिर पत्नियां हैं उस बुनियाद को दे सकते हैं। Men, you are to show your children how to apply the faith. सारे पुरुष लोग आपको ये अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि उस सच्चाई को कैसे आप इस्तेमाल करना है। As we are out in the world dealing with the world on a daily basis, जैसे हम हर दिनों में हम बाहर जाकर के हम लोगों से हम कार्य को करते हैं। those children in our home watch how we react as we say we are followers of Christ. They are hearing the message from their mother and watching the life of their father. जैसे हम घरों में जाते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं अपनी माँ को देखते हैं और उन लोग सीखते हैं और उन लोग सुनते भी हैं। That is why the husband and the wife must work together. इसीलिए पति और पत्नी दोनों को एक साथ काम करने हैं।
to bring their family into that walk with Christ. ताकि वो अपने परिवार को यीशु के साथ चलने में ताकि उन लोग ले आ सके। If you expect your pastor to be the one that guides your children to Christ, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपके पासवान को आपके बच्चों को अगुवाई करने में लगा सके, you have missed the point completely. तो आपने उस पॉइंट को पूरी तरीके से खो दिए हैं। Your children will not learn enough on a Sunday आपका जो बच्चे हैं वो रविवार में परिपूर्ण से नहीं सीख पाएंगे सब कुछ, to fight what the world throws at them the other 6 days. और बाकी जो समय में है, बाकी जो छठे दिन है, वो सब जो संसार में सीखने हैं, देखने हैं, वो सब नहीं सीख पाएंगे। This means that in order for your family to be strong in the faith, you must be strong in the faith. इसका मतलब अगर आप चाहेंगे कि आपके परिवार मजबूत बने तो आपको पहले मजबूत बनना है। And it begins by a daily personal walk with God. और ये हर दिन अपना व्यक्तिगत प्रभु के साथ चलने के द्वारा होता है। You cannot surrender that responsibility to anyone else. और आप उस कर्तव्य को किसी और को सौंप नहीं सकते हैं। In order to be thoroughly furnished unto all good works, it begins with the Word of God. और ये हर भले काम के लिए तब तक हो जाना वो प्रभु की वचन से शुरुआत होती है। In order to continue in the things which thou hast learned, in verse 14, वचन 14 पर अगर आप उस चीजों में लगातार बने रहना चाहते हैं, दृढ़ बना रहना चाहते हैं, he had to have someone teach him what to believe. और आपको चाहिए होगा कि कोई जो उसको सिखा सके कि क्या विश्वास करना है। Can you imagine how difficult it would have been for Timothy to have sat under Paul with no belief in the Bible? क्या आप समझ सकते हैं कि ये तीमुथियुस के लिए कितना कठिनदायक होता कि पौलुस के अधीन में होकर वो सीखने के लिए कितना कठिनदायक हो सकते थे। Christian, I'm going to ask you a question. मसीह लोग, मैं आपसे एक प्रश्न को पूछूंगा। I don't want you to answer out loud, please. मैं नहीं चाहूंगा कि आप बुरे ऊंचे स्वर से मुझे जवाब को दें। If you were on trial right now for being a Christian, अगर आप मसीह होकर अगर आप परीक्षा में अभी फिलहाल हैं, would there be enough evidence in your life to find you guilty? क्या आपके पास ऐसे सबूत होंगे कि आप जो पाप में दोषी ठहरे हैं उसके ऊपर? Would someone be able to look at your daily life and see the Word of God being lived out? क्या आपके जीवन में कोई देख सकते हैं कि हर दिन जैसे आप प्रभु के जीवन में जीते या फिर बाहर हो जाते हैं? Would they see 1 Corinthians 10:31 being played out in your life? क्या उन लोग देख पाएंगे कि पहला कोरिन्थियों 10:31 में जो आपके जीवन में आप क्या उसके अनुसार चलते हैं? In this verse it says, "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God." क्योंकि उस वचन में लिखा है कि चाहे तुम खाओ या फिर पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए तुम करो। Would there be enough evidence to find that in your life? क्या आपके पास ऐसा कुछ सबूत होंगे जो आप उसके अनुसार जी रहे होंगे? As you read through this passage, जैसे आप इस वचन को पढ़ते हैं, you see Paul reminding us that scripture is the foundation in our life. पौलुस हमें ये याद दिलाता है कि ये वचन जो है हमारे जीवन की एक बुनियाद है। Nothing else takes greater measure than the scripture. कोई भी वचन से भी ऊपर के स्थान को नहीं ले सकता। Your opinion must submit to scripture. आपका जो विचार है वो वचन पर निर्धारित या फिर उस पे समर्पित होने चाहिए। Your opinion and your mentality must give way to the perfect, pure Word of God. आपका जो विचार, आपका जो सोच है उसको आप प्रभु के वचन पर आपको समर्पित करने होंगे। How many of you have family or friends who are not saved? Raise your hands. आप में से कितने से लोग हैं जो आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग उद्धार नहीं पाए अभी तक? Let me ask you a question. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? If I were to set a Bible in front of you, अगर मैंने आपके सम्मुख होकर एक बाइबल को खोलकर बैठा है, could you open it up and show them the gospel? क्या आप खोलकर उन लोगों को सुसमाचार को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? Many people can. बहुत से लोग कर सकते हैं। Let me ask you a much harder question. मैं और भी कठिन एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। If I was to open your life to the world, अगर मैं आपके संसार में अगर आपके जीवन को खोलना होगा, would there be reason for me to be a follower of Christ? क्या ऐसे कुछ कारण होंगे कि मैं भी चलो यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला बन सकूं? That's where things get difficult. और वहीं पे चीज कठिन हो जाता है। I will tell you, me personally, my life many days is not the greatest. और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जीवन जो है इतना भी महान नहीं है। Yes, I'm a preacher, हाँ, मैं एक प्रचारक हूँ, but guess what? लेकिन आप सोचे क्या? I still have to surrender my mentality and my flesh to Christ every day. लेकिन हर दिन मुझे अपने देह को, अपने सोच विचार को मुझे हर दिन प्रभु में समर्पित करना होता है। How many of you have flown recently, been on an airplane? आप में से कितने से लोग ऐसे हैं जो इसको समर्पित करते हैं फिर
How many people have flown on an airplane here recently? Airplane. और आप में से कितने से लोग हवाई जहाज पर सफर किए हैं? Security alone will make you really want to check your salvation. और सिक्योरिटी जो है आपकी उद्धार को वाकई में देखेंगे कि परखेंगे कि नहीं परखेंगे उस समय। On my way here, they lost my bags. और मेरे रास्ते की और जो है मेरा जो बैग है वो लगेज वो खो गया है। I went and told the gentleman at the desk, और वहाँ से मुझे डेस्क में उठाने के लिए कहा गया। gave him a description and pictures of my bags. और उन लोगों को मेरे बैग का भी मैंने उन लोगों को पिक्चर वगैरह दिखाया। He looked at me and said, "That's a very nice phone." और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा एक फ़ोन है। That has nothing to do with my bags. और वो मेरा बैग को लेकर कुछ उससे काम मतलब है ही नहीं। He looked at me and said, "Oh, my apologies. I can't help you with that." और उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर मैं उसको आपको मदद नहीं कर सकता। He said, "You're going to have to go down the hall and the lady at the end of the hall can help you." और तुम्हें वहां पर हॉल के अंत में जाना होगा और उस एक लड़की रहेगी शायद वो आपको मदद कर सकता हो। I get to the desk. और मैं उस डेस्क की ओर जाता हूँ। I show the lady my phone that has my tag and everything on it. और जो कुछ भी टैग वगैरह है मैं अपने फोन से उनको दिखाता हूँ। Her response was, "That's a nice phone. और वो भी कहने लगी हाँ एक बहुत अच्छा फोन है। I can't help you with your bags. मैं आपकी बैग को ढूंढने में मदद नहीं कर सकती। You're going to have to go back to the gentleman down at the end of the hall, और वो हॉल के अंत में तुम्हें जाना पड़ेगा उस जेंटलमैन के सम्मुख। and he will help you find your bag." शायद वो तुम्हें मदद कर सकता है तुम्हारे बैग को ढूंढने में। I told her, I said, "Ma'am, he told me to come to you." और मैंने कहा कि वो उस व्यक्ति ने आपके पास आने के लिए मुझे कहा है। She said, "Oh, I guess I can help you." और वो कहने लगा काश मैं मदद कर सकता था। Jesus Loves Me was not the song that came to my mind at that moment. और उस समय जो है जो प्यार यीशु को लेकर वो मेरे मन में उस समय नहीं आया। I really wanted to be very angry. और मैं उस समय वाकई में बहुत गुस्सा होना चाहता था। Because the first thing I thought was, if my bags are gone, that's going to get very weird as I preach. और मैंने सोचा उस समय मेरा बैग अगर खो गया तो प्रचार के लिए बहुत कठिन हो जाएंगे मेरे लिए। I started praying. I texted Brother Lordson. I said, "They've lost my bags. I could use some prayer." और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। ब्रदर लॉसन को मैंने मैसेज किया कि मैंने अपना बैग खो दिया है। She asked me to sit down. She said, "Please go sit out in the hallway and we'll see what we can do." और वो औरत ने कहने लगी तुम जाकर वहाँ पे बैठो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। I'm talking to the gentleman beside me. और मेरे बाजू में जो एक व्यक्ति था उससे मैं बात कर रहा था उस समय। He had an 11-hour layover. और उनके पास 11 घंटे से एयरपोर्ट के अंदर ही वो उस समय मौजूद थे उस समय। He had been waiting for 14 hours for his bags, और वो अपने बैग के लिए जो है 14 घंटे से लगातार अपेक्षा करते हैं। and they still had not found them. लेकिन अभी तक उनके लिए अभी तक उन लोगों ने नहीं ढूंढ निकाला। And he said, "These other people have been here since I got here." और उन्होंने कहा कि जब से तुम्हें मिला है तब से उन लोग भी वहां पर अपेक्षा करते हैं। I started praying और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया because my flight left in 40 minutes. क्योंकि 14 मिनट में मेरा जो फ्लाइट है वो छूट गया। I still had to go through customs. और मुझे कस्टम्स के द्वारा भी जाना होता है I still had to go through final security, और बहुत से सिक्योरिटी के द्वारा भी जाना होगा and I had to get my ticket. और मेरा टिकट भी देना होता है। I started praying. I said, "Lord, I could really use my bags now." और प्रभु से मैं प्रार्थना करने लगा मेरे बैग को लेकर। About that time, a police officer walks by carrying 4 bags. और पुलिस ऑफिसर 4 बैग को लेकर आ रहे होते हैं उस समय। He said, "I'm looking for Stephen Shute." और उसने कहने लगे मैं स्टीवन शूट के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ उस समय। It's like, "Close enough. That'll be me." और मैं यहाँ पर हूँ मैं हूँ। He looked at me. He said, "I don't know why, वो कहने लगे कि मुझे मेरे को देख के मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा लगा but something told me to pull these bags off of the belt." और मुझे लगा कि इस बैग को यहाँ पर हटाना चाहिए यहाँ से उठाना चाहिए। I started thinking, "Well, thank you, Lord. Appreciate that." और मैंने प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया उस समय। Before I caught myself, I said, "I've been praying for those bags." और कहने लगा उस समय उस बैग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था उस समय। The guy looked at me and said, "I'm Hindu. Congratulations." और उस व्यक्ति ने देखकर कहा कि मैं हिंदू है आपको मुबारक हो। The gentleman that had been waiting for his bag said, "Can you please pray for mine?" और वो व्यक्ति ने भी कहने लगा कि वो जो अपेक्षा करता है क्या आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। In that moment, I had to realize my faith, it isn't just for the good times. और मैंने वो समझा कि मेरा जो विश्वास है केवल अच्छे समय के लिए ही नहीं है।
We pray during the hard times because that's when it's kind of needed. क्योंकि हम कठिन समय में हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उस समय हमें ज़रूरी होता है, ज़रूरत होता है। But think about it. As funny as it was for the gentleman to say, please pray for mine, how serious do you think he was? और जितना ही वो मजाकिया बात है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन उसके लिए बहुत सीरियस वाली बात भी थी। I reached in my bag and I only had one gospel tract. और वहाँ पर बैग तक मैंने पहुँचा और मैंने देखा कि मेरे पास एक ही गॉस्पेल ट्रैक्ट था। When I travel, I especially out of country, I don't tend to take religious material handy with me. और जब मैं बाहर देशों में जाता हूँ इधर उधर, तो मैं ज़्यादातर धर्मीय किताब को ज़्यादातर मैं अपने हाथों में नहीं रखता, But it was the only one I had. लेकिन एक ही था मेरे पास उस समय। So as I'm leaving, I said, here, read this. You can pray afterwards. और And left. जाने से पहले मैं उस किताब को देकर गया पर्ची को, और कहा कि तुम इसको पढ़ सकते हो। What I did not know was the gentleman that had gotten my bags और मुझे नहीं मालूम था, जो व्यक्ति ने मेरे बैग को वहाँ पर लेके आया उस समय, was the director of security for the airport. और वो एयरपोर्ट में डायरेक्टर का एक सिक्योरिटी था उस समय। He said, when does your flight leave? और कहा कि तुम्हारा फ्लाइट कब छूटेगा? I said, right about now. और मैंने कहा कि अभी शायद से। He said, walk with me. Don't worry about going through customs. You're with me. I'll stamp your passport and we'll leave. और उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा स्टैम्प कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। I get to the plane. और मैं प्लेन में जाता हूँ उस समय। They were supposed to have left 30 minutes before. और लोगों को 30 मिनट पहले उन लोगों को छूटना था उस समय, But the pilot was sick. लेकिन पायलट जो है वो उस समय बीमार था। So as I'm getting on the plane, जैसे she's मैं- closing the door. जैसे मैं प्लेन की ओर जा रहा था, वो दरवाजा बंद कर देती है उस समय। Please don't wait. और मैंने कहा कि रुको रुको, मत करो। As I get on the plane, the pilot looks at me and goes, you might better pray. I was like, oh, we're good. We're there. और वो जैसे ही पायलट कहने लगा कि तुम्हें दुआ करनी चाहिए उस समय। Our faith is not about just the good times. हमारा जो विश्वास है केवल अच्छे समय के लिए नहीं है। Scripture points out that your faith is not just about the times that are easy. वचन बताते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास है केवल आसान समय के लिए नहीं है, It is when times get interesting. लेकिन जब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग जब होती है तभी नहीं, It's about when times get hard. जब कठिन समय होते हैं। You have to go back to your anchor. और आपको जाकर अपने एंकर के पास जाने होता है, You have to go back to what you know is truth. और आपको वहां पे जाने हैं जहां पर आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। Because I can tell you, I was not a happy person in that moment. क्योंकि उस समय मैं खुश नहीं था, As my bags had disappeared, क्योंकि मेरा जो बैग गायब हो गया था, Jesus loves me was not what came to my mind. और जो यीशु मुझे प्यार करता वो मेरे मन में नहीं आया उस समय, I was very angry. क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था। God was not happy. प्रभु खुश नहीं था, But he answered the prayer anyway. लेकिन फिर भी उसने मेरा प्रार्थना का जवाब दिया, Just because he could. क्योंकि वो कर सकता था। Because he realized there was a gentleman that had been waiting for 15 hours वो जानता था कि वो 15 घंटा से वहां पर अपेक्षा कर रहे थे अपने बैग के लिए, who needed that gospel tract. और जिसको गॉस्पेल ट्रैक्ट्स की जरूरत थी। That I would have walked right past had I gotten my bags on schedule. अगर मेरे पास बैग था तो मैं वहां से वैसे ही चल के जा सकता था उस समय। As I sat on the plane, I'm reading my phone because I couldn't take my Bible out, so I'm reading my phone. और मैं जब फ्लाइट में बैठा तो उस समय मैं अपने फोन में कुछ पढ़ रहा था उस समय। The gentleman beside me looks at me and says, "What are you reading?" मेरे बाजू में जो व्यक्ति था वो कहने लगा कि तुम क्या पढ़ते हो इस समय? I told him, I said, I'm reading my Bible. I've got a Bible app on my और phone. मैंने कहा कि मैं मोबाइल में अपना बाइबल को पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में बाइबल ऐप है। He said, I'm an atheist, but I just started reading the Bible. वो कहने लगा कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं बस बाइबल पढ़ता हूँ ऐसे ही कभी कभार। He said, I'm in the book of Numbers. और वो कहने लगा कि मैं गिनती की किताब में हूँ अभी फिलहाल। I was like, oh, may the Lord be with you. और कहना लगा, प्रभु तुम्हारे साथ हो। He said, can you recommend a good book in the Bible to start with? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो कि कहाँ से मैं शुरुआत कर सकूँ बाइबल में? And for the 2 hours and 35 minutes of that flight, और करीबन 2.5 घंटे उस फ्लाइट में that man walked me through his beliefs as I walked him through Scripture. और वो अपने विश्वास में जैसे था वैसे गया, और जैसे मैंने अपने बाइबल को लेकर गया। I do not know if he will ever come to Christ. और मुझे नहीं मालूम कि वो कभी भी प्रभु में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, What I do know is that the Word of God was planted in his heart. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में बोया गया है। And that Scripture that tells us it is profitable for instruction in righteousness, क्योंकि लिखा है कि ये उपदेश के लाभदायक है और समझाने के लिए और सुधारने के लिए लाभदायक है, will begin to grow in his life. और वो उनके जीवन में वो बढ़ सकता है। Because somebody somewhere क्योंकि कोई कहीं पे got him interested in reading the Bible for absolutely no reason.
और उनको बिना कोई मकसद के, बिना कोई कारण के उन्हें बाइबल पढ़ने में उसको लगाया। Interestingly enough, he told me that his grandmother had told him he was praying, or she was praying for him that day. और उसने कहने लगा कि उस दिन में उनकी जो दादी माँ है वो उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। It was his first time ever flying. और उसका वो पहला दिन था फ्लाइट में, First time. पहली बार, पहला। He was kind of scared. और वो थोड़ा सा डरा हुआ था। Oddly enough, I told him, I said, I bet you're not an atheist now. Told him I don't think he's an atheist now. और He's मुझे afraid. नहीं मालूम कि वो शायद नास्तिक है कि नहीं, अभी फिलहाल मुझे पता नहीं। When you're afraid of dying, no one's ever an atheist. क्योंकि अगर आप मरने से डरते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई नास्तिक हो। Everyone around us is looking for something real. हमारे चारों ओर कोई ना कोई उन लोग सच्चाई के लिए देखते हैं इधर उधर। Everybody has an opinion. हर किसी के पास अपना अपना अलग विचार है, We have the truth. लेकिन हमारे पास सच्चाई है। My question for you tonight, मेरा प्रश्न आपके लिए ये है आज, what are you doing with what you know? जो आप जानते हैं उससे आप क्या कर रहे हैं? Are you willing to let your life so shine before men that it will glorify your Father which is in heaven? क्या आप अपने जीवन को इतना चमकाना चाहेंगे जो परमेश्वर स्वर्गीय स्थान में विराजमान है उनको ताकि महिमा मिल सके? It is easy to say, I love God. क्योंकि यह बहुत आसान है कहने के लिए कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, It is a different story to prove you love God. लेकिन ये आपके लिए कठिन होंगे कि आप इसका साबित कर सकते हैं कि नहीं, And to live your life in such a way that others do not doubt your love for God. और ऐसा जीवन जीने के लिए बाकी लोग कोई ऐसे संदेहजनक नहीं होंगे उस समय। Continue thou in the things which thou hast learned. और जो आपने सीखा है उसके ऊपर आप दृढ़ बने रहें, Anchor your life in the Bible, और आप अपनी जीवन को जो है बाइबल में बनाए रखें, and you will always find the truth when you need it. और जो आपको जरूरत होंगे उस समय आप हमेशा सच्चाई को पाएंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Lord, I ask that you would use your word this evening पिता परमेश्वर, मैंने आपकी वचन को इस समय बांटा है पिता, इस समय to glorify your name ताकि आपके नाम की महिमा होने सके, and to edify your church. ताकि आपके कलीसिया की उन्नति हो सके। Lord, help us to understand that living the word of God is more important आप हमें मदद कर ताकि हम आपकी वचन में जीने के लिए ताकि सहायता करें, and makes a greater difference than simply saying we believe it. ताकि हम ये बोलते हुए कि हाँ इसको हम बस ऐसे ही विश्वास कर सके। Father, I lift up your people here, पिता, मैं आपके लोगों को इस समय बताना चाहूँगा पिता परमेश्वर, that in all things your name would be glorified. ताकि हर विषय में आपके नाम को महिमा मिल सके, All these things we ask और इसको हम मांगते हैं इस समय in the precious name of Jesus. पिता, अब यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।